Let's begin. So let's begin with today's class, which is directly oriented with another topic which is coming at the clustering, the machine learning. And before moving ahead, let's see it. So we are working here. We have already discussed about all the type of techniques, validation technique, feature reduction, dimensionality reduction, principal component analysis. We have discussed about all of them. So even that, if you feel any sort of a doubt and every kind of a notes has been given, सारे आपको notes दे दिए गए हैं. फिर भी अगर आपको लगता है, if you have any sort of doubt, you are free to ask the question. आप पूछ सकते हैं और आप डाउट क्लास भी अरेंज कर सकते हैं एज पर योर चॉइस. दैट विल बी अवेलेबल. डाउट क्लास के लिए आप बोलेंगे तो वो भी मैनेज हो जाएगा. You please discuss with that. And meanwhile, whenever you just come here and we can have a discussion on each and everything related to that. So up further इसमें we are moving ahead and now we have a target to understand basically the clustering. So we are moving ahead and try to understand what is the clustering and what are the things related to the clustering. So this is basically the target we are having. So let's come on the topic clustering. It's very simple. Cluster. A cluster is basically a type of unsupervised learning. अब जब machine learning में हम लोगों ने बात करी थी तो machine learning में हमने कई सारे options लिए थे जिसमें एक unsupervised machine learning आया था, supervised आया था, unsupervised आया था, reinforcement आया था. तो जब हम unsupervised machine learning के बारे में बात करते हैं तो unsupervised machine learning का सबसे first process जो है that is what the clustering. And this method is method the withdraw or reference with the data set. So this is basically used. What exactly the meaning of a clustering? Let's understand that. So clustering is a task dividing population of a data points into the number of groups such as the data points of same groups are more similar to the other points in the same group and dissimilar to the data points in the other groups. It is basically a collection of objects on the basis of similarity and dissimilarity between them. तो क्लस्टरिंग में यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, कुछ भी नहीं आप स्पेशल करते. क्लस्टरिंग में सिर्फ और सिर्फ आप इतना करते हैं कि जो भी आपके पास में डेटा है, डेटा सेट जो भी जिस तरीके का डेटा सेट आपके पास अवेलेबल है, उस डेटा सेट में आप जो सिमिलर टाइप ऑफ मटेरियल होते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा पॉइंट्स होते हैं, उन सिमिलर टाइप ऑफ डेटा पॉइंट्स को आप एक ग्रुप में मेंटेन करते हैं और जो से थोड़े डिफरेंट है यू आर पुटिंग इट टू द अनदर ग्रुप. So that is what we do. So similarity and dissimilarities will decide how many groups are going to maintain. जैसे फॉर एन एग्जांपल, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स लेता हूँ. सपोज कीजिए आपके पास में एक बहुत बड़ा बकेट है, आप मार्केट से आए. तो मार्केट से आने के बाद आपने बहुत सारा सामान लिया और बहुत सारा सामान लेने के आपने किसी को बोल दिया सामान को सेग्रीगेट करिए. तो सामान को सेग्रीगेट करने में क्या किया जाएगा? द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज व्हाट? द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट उसका सेग्रीगेशन जब आप करेंगे तो सेग्रीगेशन में आप ये देखेंगे कौन कौन सी चीजें, जैसे फ्रूट्स एक तरफ कर दिए जाएंगे, सेकंड कैटेगरी वेजिटेबल एक तरफ कर दिए जाएंगे, ग्रोसरी आइटम एक तरफ. अब ग्रोसरी आइटम में हो सकता है ऑयल भी और बिस्किट भी हो, although they are different, but we are having a certain kind of a clustering of a data that this is exactly what a grocery. तो ग्रोसरी एक तरफ कर दिया जाएगा. सिमिलरली अगर आप क्लोथ्स लेके आए हैं तो नो मैटर एट ऑल वेदर इट इज अ शर्ट और अ ट्राउजर, आउटगोइंग है या घर में कैजुअल वियर है, आपका फॉर्मल है, तो ये सब नहीं देखेंगे, बट यू आर पुटिंग योर ऑल द क्लोथ इज द वन साइड. सिमिलरली अब क्लोथ्स में भी जब आप ग्रुपिंग करना चाहेंगे तो फिर आप ये देखेंगे कौन सा फॉर्मल वियर है, कौन सा कैजुअल वियर है, कौन सा स्पोर्ट्स वियर है, सो और कौन सा नाइट वियर है. Then you decide again you make a clustering of that. So clustering is can be simply defined as जब आपके पास बहुत सारा डेटा सेट ऑफ पॉइंट होता है तो उन डेटा सेट ऑफ पॉइंट को जब आप एक सर्टेन सिमिलरिटी बेसिस पे ग्रुपिंग में क्रिएट करते हैं then you say that we are clustering the data. Then we are clustering the data. Now moving ahead in the same direction. So moving ahead in the same direction, what we do? We simply take an example of this one. We have a certain kind of a things like ये आप ध्यान से देखेंगे ये कुछ डेटा पॉइंट्स है. अब ये डेटा पॉइंट्स यहाँ 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 तीन अलग जगह पर बने हुए हैं. तो दिस डेटा पॉइंट सिंपली शोज कि इनमें मिक्सअप ऑफ अ डेटा हो सकता है, कुछ भी टाइप का हो सकता है. जब आपने इनको उठा के सारे के सारे फैले हुए डेटा को उठा के अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया तो आपने कहा कि हमने इसको क्लस्टर कर दिया. अब जरूरी नहीं है कि क्लस्टर जो होना चाहिए वो हमेशा यूनिफॉर्म होगा. वही डिपेंड करेगा कि आप ग्रोसरी में सबसे ज्यादा फल लेके आए हैं, अपना जब सामान शॉपिंग करके लाए तो सबसे ज्यादा अगर आपके पास फल आए हैं तो क्या होगा? यू हैव अ मैक्सिमम नंबर ऑफ डेटा रिलेटेड इन द ग्रुप ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स. क्लोथ्स कम होंगे तो छोटा ग्रुप हो सकता है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है. अब क्लस्टरिंग की हो जाती है. व्हाट इज द बेसिकली रीजन बिहाइंड दैट? क्लस्टरिंग के पीछे रीजन क्या है? So clustering is very important as it determines the intrinsic group among the
अनवेल्ड डेटा। अनलेबल्ड डेटा जो होता है आपका, जो जिसके बाद आपको पता नहीं है क्या है, बस यू आर जस्ट गिविंग इट एंड प्रोवाइडिंग। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आपके घर में आपका कोई हेल्प है या आपके ऑफिस में आपका कोई हेल्प है, और उस ऑफिस हेल्प को आपने बोला कि यार मेरे बहुत सारे पेपर मेरी हेल्प में पड़े हुए हैं, उनको सेग्रीगेट कर दो। अब उसको तो समझ में नहीं आएगा ना आपको कौन सा पेपर किस काम का है, तो उसका सेग्रीगेशन लेवल क्या होगा, वो किस तरीके से सेग्रीगेट करेगा। वो ये देखेगा कि कौन सा डेटा टाइप्ड है उसको अलग कर देगा, कौन सा डेटा साइंड है वो अलग कर देगा। इट माइट बी पॉसिबल कि साइंड डेटा आपका अलग अलग कैटेगरी का हो, पर वो सिर्फ इम्पली ये देखेगा कौन सा आपके पास में पेपर जो पड़े हुए हैं, कौन सा ऐसा पेपर है जो किसी का बिल है उनको अलग कर देगा, कौन सा ऐसा लगेगा जो वारंटी कार्ड्स है उनको अलग कर देगा। सो पूरे के पूरे ग्रुप में वो सिर्फ ये देखने की कोशिश करेगा कि कौन सी चीज किससे मिलती है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट व्हाट यू डू, क्या करेंगे, उस बेसिस पर आप उनकी ग्रुपिंग करेंगे। तो डेटा का स्पेसिफिक टाइटल नहीं हो सकता कि ये डेटा इस टाइप का है, without having a similar type of a title, without having any label of data, if data is being collected and put into a certain kind of a group, then it's called as a clustering. So if you read this content, you would be able to understand there are no criteria for a good clustering. It depends on the user. अब आपने सपोज कीजिए, फॉर एन एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल आपके पास में लिए जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप जब सामान खरीद के लाए तो आपने फ्रूट्स अलग, उसको बोला कि मेरा सामान अलग अलग कर दो, अब उसने ग्रोसरी आइटम अलग कर दिया और वेजिटेबल फ्रूट्स एक तरफ कर दिए, क्लॉथ्स एक तरफ कर दिए, सब कुछ। लेकिन हो सकता है कि इसके पीछे आपका ऑब्जेक्टिव हो कि कल मुझे जब कहीं जाना है तो मुझे इनमें से ये आइटम लेके जाने हैं, है ना। इट माइट बी पॉसिबल कि मुझे ये आइटम लेके जाने पड़ सकते हैं। सो क्लस्टरिंग का कोई टारगेट नहीं है, हो सकता है आपको अपने टुमारो यू हैव टू ब्रिंग फ्रॉम फ्यू फ्रूट्स, few grocery items and few clothes। आपका क्लस्टर जो बनने वाला था वो इट माइट बी डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन व्हाट यू आर गोइंग टू ब्रिंग टुमारो, आप कल क्या लेके जाने वाले हैं इस पर डिपेंड कर सकता है। Got it? So all these kind of a things are totally depending upon basically what is our objective. So similarity and dissimilarity can be created on the basis of fact that what exactly the motive behind, हमारा motive क्या है उसके पीछे। तो जो भी हमारा motive होगा, on the basis of that motive one can easily move on towards the kind of a clustering. So if you read this data, there are no criteria for the good clustering. It depends on the user and what criteria they may use to satisfy their need. For instance, we could be interested in finding the representative from homogeneous group, data reduction, finding natural clusters and describing the unknown properties, natural data types. इन फाइंडिंग यूजर सुटेबल ग्रुपिंग यूजफुल डेटा क्लासेस, जो भी आपने बनाना होगा उसके हिसाब से काम करेंगे, और इन फाइंडिंग अनयूजुअल डेटा जो आपके काम का नहीं है, आउटलायर डिटेक्शन। तो ये यूजफुल डेटा तो हम बोलते हैं नेचुरल डेटा टाइप बोलते हैं, और जो अनयूजफुल डेटा होता है उसको आउटलायर डिटेक्शन कहते हैं, दैट वी डू। This algorithm must take some assumptions that constitute the similarities of point and each assumptions make a different and equally valid clusters। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया ना ग्रुपिंग करना, बड़ा आसान सा है कि आप किसी भी चीज के, आपने कुछ बुक्स है आपके पास में 1000 किताबें, 1000 किताबों में से कुछ किताबें आपकी स्टडी बेस्ड हैं, साइंटिफिक टाइप ऑफ सम स्पिरिचुअल बुक्स आपके पास में, तो जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बुक्स आपके पास में है तो उन डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बुक्स को आप यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, बेस्ड ऑन काइंड ऑफ अ ग्रुप यू कैन क्रिएट। आप ग्रुप यूज करेंगे और जिस ग्रुप में से आपको जो लॉट का बुक चाहिए भाई, ऐसा लाइब्रेरी में भी करते हैं। तो लाइब्रेरी में व्हाट वी डू जनरली क्लस्टर द थिंग्स, तो वो भी ऐसे ही मेंटेन करके रखते हैं। एंड इट टोटली डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ अ यूजर, यूजर क्या चाहता है। अब आते हैं कि अगर हमें क्लस्टरिंग करनी है तो हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं क्लस्टरिंग करने। तो सबसे पहला आता है क्लस्टरिंग डेंसिटी बेस्ड मेथड। फर्स्ट मेथड है, these methods consider the cluster as the dense region having some similarities and difference from the lower dense region of the space. These methods have good accuracy and ability to merge two clusters. Example, DB scan, density-based spatial clustering and application with noise, and secondly, optics method, order points for identifying the clustering structure. तो डेंसिटी बेस्ड का मतलब जो चीजें एक दूसरे के आसपास होंगी, ध्यान से समझिएगा, जो चीजें एक दूसरे के आसपास होंगी वही तो डेंस होंगी। फॉर एन एग्जांपल, कहीं पर समथिंग इज देयर
जहां पर कुछ ऐसा है कि कुछ फ्री डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, समथिंग इज देयर, है ना, कहीं कुछ फ्री डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो जहां पर वो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वहां पर क्या होगा, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो पार्ट होगा वहां पर आपका क्रिएट हो जाएगा एक क्लस्टर, कुछ लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो ये डेंसिटी ऑटोमेटिकली वहां जाके इंक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली सिमिलरली another type of clustering is nothing but having a hierarchical based method. दूसरे तरीके में क्या किया जाता है, cluster forms in the method a tree type structure based on hierarchy. New clusters are formed using the previously formed one. It is divided into the two categories. ये एग्लोमेरेटिव में यूज किया था और डिवाइसिव में किया था। डिविसिव भी यूज किया सकता है, एग्लोमेरेटिव इसमें हायरार्की क्रिएट करते हैं, ग्रुप बनाने के रीजंस होते हैं, हायरार्की बेस्ड किए जाते हैं। एग्जांपल, अब जो इसका जो एग्जांपल है दैट इज व्हाट द क्यूर क्लस्टरिंग यूजिंग रिप्रेजेंटेटिव्स, BIRCH, बैलेंस इटरेटिव रिड्यूसिंग क्लस्टरिंग, ये सेकंड मेथड हो गई। फिर पार्टीशनिंग, फिर आप यूज करते हैं इसमें पार्टीशनिंग का यूज करते हैं। तो ये जो मेथड्स है बैलेंस इटरेटिव रिडक्शन, अभी आपको ये समझना होगा ये, ठीक है। सेकंड है आपका ये क्लस्टरिंग यूजिंग रिप्रेजेंटेटिव्स, आप इसको समझने की कोशिश करते हैं इसमें और क्या तरीके हो सकते हैं। तो आपने एक देखा डेंसिटी बेस्ड मेथड हो गया, हायरार्की बेस्ड हो गया, इसमें भी दो तरीके के हो गए, एग्लोमेरेटिव हो गया और डिवाइसिव हो गया। फिर आप फर्दर मूव ऑन करते हैं, इसमें पार्टीशनिंग मेथड्स हो गए, फिर इसमें ग्रिड बेस्ड मेथड हो गया। ये आपके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स इसमें यूज किए जा सकते हैं, डेंसिटी, हायरार्की, पार्टीशनिंग, ग्रिड बेस्ड। तो ये ग्रिड बेस्ड में आप पार्टीशनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। दिस मेथड पार्टीशंस ऑब्जेक्ट्स इनटू द के क्लस्टर्स, छोटे के नंबर ऑफ 1 2 3 4 के की वैल्यू आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर आप के क्लस्टर्स क्रिएट करते हैं एंड ईच क्लस्टर, जो भी क्लस्टर आप यूज करें, पार्टीशन फ्रॉम वन क्लस्टर। दिस मेथड इज यूज्ड टू ऑप्टिमाइज एन ऑब्जेक्टिव criteria similarity functions such as in when the distance is major parameter, example k means clearance, clustering large application based upon randomized search. Grid based method, second आप यूज करते हैं grid based. In this method the database is formulated. तो पार्टीशनिंग में आप क्या करते हैं, उनके सर्टेन छोटे छोटे ग्रुप्स बनाते हैं और इसको उन्होंने फुल फॉर्म में किया था क्लियरेंस, क्लस्टरिंग लार्ज एप्लीकेशन बेस्ड अपॉन रैंडमाइज्ड सर्च। जब लार्ज एप्लीकेशन पे आप रैंडमाइज्ड सर्च के बेसिस पर आप यहाँ पे क्लस्टरिंग करते हैं। Grid based method, in this method the data space is formulated into finite number of cells that form a grid like structure. All the clustering operation done on these grids are fast and independent of the number of data objects, similar to sting. एक और मेथड यूज कर रहे हैं स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन ग्रिड, इसको बोलते हैं स्टिंग, वेव क्लस्टर एंड द क्लिक क्लस्टरिंग इन क्वेस्ट। तो अब ग्रिड बेस्ड में क्या किया, डेटा स्पेस बना देते हैं अपनी तरफ से इनटू अ फाइनाइट नंबर ऑफ छोटे छोटे डेटा स्पेस की छोटी छोटी सेल्स क्रिएट कर दी जाती है और जो सेल्स होती है वो ग्रिड की, जैसे आपने देखा ना एक्सेल, एक्सेल की जो शीट होती है उनके छोटे छोटे पार्ट होते हैं, जो रोज एंड कॉलम्स, तो आप देखिए उनमें सेल बनी हुई है, इस तरीके की फाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स क्रिएट कर दी जाती है। अब जो भी क्लस्टरिंग ऑपरेशन डन ऑन दीज ग्रिड्स आर फास्ट एंड इंडिपेंडेंट, हर क्लस्टर हर सेल अपने आप में इंडिपेंडेंट है। नंबर ऑफ डेटा ऑब्जेक्टिव, इसमें कौन से मेथड यूज किए हैं, तो आप इसमें स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन ग्रिड, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन हो सकती है, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपके पास बहुत सारा उटपटांग डेटा है, उसमें आपको नंबर ऑफ कुछ लोग हैं जिनकी एज के बारे में, तो आपने उस सेल्स के अंदर एज डाल रखी है। अब मेरी एज किसी और की एज से या आपकी एज से बिल्कुल इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर, तो ये सेल्स इंडिपेंडेंट सेल्स क्रिएट हो जाती है यहाँ पर, जो हम इस पर बात कर रहे हैं। वेव क्लस्टर, क्लिक्स क्लस्टरिंग इन द क्वेस्ट, और आप क्लस्टरिंग इस बेसिस पे करते हैं जहां पर आपको यू आर लुकिंग फॉर अ सर्च एल्गोरिथम। अब कौन कौन से एल्गोरिथम्स हैं जो यहाँ पर यूज किए जा सकते हैं, आई होप सो टिल नाउ इट्स वेरी मच क्लियर। मैं आपके लिए फिर एक बार रिवीजन कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड क्लस्टरिंग इन मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में क्लस्टरिंग क्या होता है, तो आप सबको ये फर्स्ट पॉइंट वेरी मच क्लियर होना चाहिए कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का एक मेथड है। क्लस्टरिंग होता क्या है, क्लस्टरिंग का मतलब है कि हम जब डेटा को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जब हम ग्रुपिंग कर देते हैं, डेटा है अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपने कुछ नहीं किया, उनका क्या ये वन क्लस्टर, सेकंड क्लस्टर, थर्ड क्लस्टर, पहले अपने आप में ये पूरा का पूरा एक ग्रुप था, ये पूरा अपने आप में एक ग्रुप था, लेकिन अब आपने क्या किया, इसको एक ही सिंगल डेटा था और सबके अपने अलग वैल्यू थे, इनमें से आपने इनको जो ग्रुप कर दिया तो आपने कहा ये वन टाइप हो गया, सेकंड टाइप हो गया, थर्ड टाइप हो गया, ये। और जहां पर ये डेटा होता है उसको स्पेस बोलते हैं,
ये किसी भी डायमेंशन के अलॉन्ग हो सकता है, एक्स और वाई एक्सिस कुछ भी हो सकती है जो आपकी नीड के बेसिस पर है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, इधर ले लिया आपने क्लॉज और यहाँ ले लिया फॉर्मल भी, तो मेरे पास क्लॉज कितनी है और फॉर्मल कितनी है उसमें ये आपको देखना आ सकता है। सिमिलरली यहाँ पर जब आप क्लस्टर्स क्रिएट करते हैं, तो क्लस्टर क्रिएट करते में यहाँ पे ये बताया कि वो जरूरी नहीं है आप बिल्कुल यूनिफॉर्म टाइप ऑफ क्लस्टर्स ही माने, इनकी कोई भी शेप हो सकती है, किसी भी तरह की क्लस्टर हो सकती है। फिर आपको ये बताया गया कि क्लस्टर्स होते हैं डीबी स्कैन, डेंसिटी बेस्ड स्पेशल क्लस्टरिंग एंड एप्लीकेशन विद नॉइज, ये डेंसिटी बेस्ड होते हैं, ठीक है। These data points are clustered by using the basic concept of data point line within the given constant from the cluster center. Various distance method and techniques are used for the calculation of this outliers. अब जो DB scan है, डेंसिटी बेस्ड स्पेशल क्लस्टरिंग एंड एप्लीकेशन विद नॉइज है, इसका मतलब होता है कि क्लस्टर्स आप बनाते हैं जहां पर जितनी ज्यादा चीजों की क्लोजनेस होती है। भाई देखिए डेंसिटी वही बढ़ेगी जहां पर क्लोजनेस होगी, आपस में सिमिलरिटीज होगी। तो ये आपने देखा क्लस्टरिंग की जरूरत क्या है ये आपको समझ में आया। क्लस्टरिंग से ग्रुप्स हो जाते हैं, आइडेंटिफिकेशन आसान हो जाता है। और डेटा साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट एक और पार्ट होता है कि क्लस्टरिंग में यूजफुल और नॉन यूजफुल डेटा भी होता है। तो नॉन यूजफुल डेटा को नॉइस कहा जाता है और उसको आउटलायर डिटेक्शन भी कहते हैं, जो फालतू का है, एक्स्ट्रा है, एडिशनल है, दैट कैन यूज। क्लस्टरिंग मेथड जो यूज करते हैं वो आप बेसिकली डेंसिटी बेस्ड मेथड यूज कर सकते हैं, हायरार्की बेस्ड यूज कर सकते हैं। हायरार्की भी दो तरीके की हो सकती है, एग्लोमेरेटिव हो सकती है और डिविसिव हो सकती है, तो डिविसिव यूज कर सकते हैं। फिर आप पार्टीशनिंग मेथड यूज करते हैं, फिर आप ग्रिड बेस्ड मेथड यूज करते हैं, ये आपके हो गए। नाउ जब ये सारे के सारे कॉमन मेथड आपके हो जाते हैं, तो दैट आई एम गोना टू गिव यू, ये मैं सब कुछ आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दैट, everything will be available to you till now, and what kind of algorithms will be there, that all will be available, that is gonna to give you. So I suppose it's clear कि क्या है क्या नहीं है। Meanwhile, if you feel any doubt, any difficulty, you can easily ask me, आप पूछ सकते हैं मुझसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कोई भी चीज पे आप डिस्कशन कर सकते हैं, बार बार डिस्कशन कर सकते हैं। और द कंटेंट विच आर टॉट टू यू वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है आपके पास एज अ रिकॉर्डिंग, सारा का सारा एज अ रिकॉर्डिंग मटेरियल भी अवेलेबल है, जिससे आप इसको समझ पाए। और रिकॉर्डिंग के साथ साथ कंटेंट मटेरियल भी आपके पास में अवेलेबल है, बोथ द थिंग्स आर अवेलेबल हियर, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट, the files are with us। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्लस्टरिंग क्या होती है और बेसिकली व्हाट आर द कॉमन मेथड्स ऑफ क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग के कौन कौन सी कॉमन मेथड्स होते हैं, ये सारी चीजें आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगी। जब आप इसको वेल स्टडी करेंगे, खुद के यूज करेंगे और जब कंटेंट के साथ में करेंगे, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट मोर, आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे कि व्हाट एग्जैक्टली मीन ऑफ इट, इसका मतलब क्या है। और व्हाट आई ऑलवेज से कि जितना पढ़ेंगे जितना पूछेंगे उतना, आप कहते हैं ना, आई ओपनिंग हो जाता है, उतना ही आप और अच्छे से इसको आप समझ पाते हैं और उतना अच्छे से इसको क्लियर कर पाते हैं। तो ये ऑप्शन आपके पास हमेशा अवेलेबल है, यू कीप वर्किंग ऑन दैट, आप उस पर काम करिए, पूछिए बार बार अगर आपको कोई किसी का डाउट होता है। कंटेंट आपको हमेशा अवेलेबल होगा, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है एक बार इसको देख लीजिए, एंड मीन व्हेन यू फील एनी डिफिकल्टी यू आर फ्री टू आस्क, आप पूछ सकते हैं, इसकी भी चीज के लिए कोई बात कर सकते हैं, तो हम होगा, ठीक है। So coming back on, giving a little pause of it and finally coming back on कि what are basically algorithms are there। तो अगर हम बात करते हैं कि क्लस्टरिंग एल्गोरिथम में, तो एक के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम सबसे ज्यादा यूज किया था, इट इज द सिंपलेस्ट अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम दैट सॉल्व क्लस्टरिंग प्रॉब्लम, क्लस्टरिंग की प्रॉब्लम, क्लस्टरिंग ग्रुप बन। अब हम लोग क्लस्टरिंग का एग्जांपल जो लेके देख रहे हैं लाइव प्रैक्टिसेस में, ये सोच के चलते हैं कि हमारे पास कुछ 100 पेपर्स हैं, उनको क्लस्टर करना है, या एक अलमारी के अंदर भरे हुए एंटिटीज हैं, 100 है, 200 है, 300 है, 400 है, 500 है, बड़ा आसान सा काम है। और जस्ट इमेजिन अब आपके पास 10,000 ऑफ डेटा है और 10,000 ऑफ डेटा के अंदर मल्टीपल डायमेंशन ऑफ फीचर्स है, डेटा भी बहुत सारा बड़ा है और डेटा के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं जो मल्टीपल डायमेंशन में काम करते हैं। देन व्हाट यू विल डू, तब आप क्या करेंगे, इन दैट सिचुएशन द क्लस्टरिंग विल वर्क। तो आप क्लस्टरिंग के लिए आप एक एल्गोरिथम बनाएंगे, उस एल्गोरिथम को आप अप्लाई करेंगे, गॉट इट। It is the simplest unsupervised learning algorithm that solve clustering problem, k-means algorithm, partitions, and observation to the k clusters. छोटे छोटे k ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं, where each observation belongs to the cluster and the nearest mean serving as a prototype of a cluster.
एप्लीकेशन ऑफ अ क्लस्टर इन डिफरेंट मेथड, कहाँ पे यूज हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग में क्लस्टरिंग यूज होती है। इट कैन यूज टू करेक्टाइज द डिस्कवर कस्टमर सेगमेंट फॉर मार्केटिंग पर्पस, तो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। कितने लोग ऐसे हैं जो अमेजन पे शूज खरीदने आए, कितने लोग ऐसे हैं जो क्लोथ्स खरीदने आए, कितने लोग ऐसे हैं जो बुक्स खरीदने आए, कितने लोग हैं जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने आए। जब ये एंट्री में जाके काम होता है, उस टाइम पर, उस सिचुएशन पर, एट दैट पॉइंट व्हाट हैपेंस इन दैट सिचुएशन, जब इस तरीके से काम जाके वहां पर होता है, एट दैट सिचुएशन जो डेटा एनालिटिक्स क्रिएट होती है, वो डेटा एनालिटिक्स यूजफुल हो जाती है फर्दर बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, वहां पर उसको यूज किया जाता है। तो फर्दर बिजनेस एक्सपेंशन में आप जाते हैं और वहां जाने के बाद में यू आर गोना टू यूज योर डेटा एनालिटिक्स, आप डेटा एनालिटिक्स को यूज करते हैं। और डेटा एनालिटिक्स को यूज करने के बाद में आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आज अमेजन के ऊपर सबसे ज्यादा फुटफॉल शूज खरीदने वालों का था, बैग्स खरीदने वालों का था, किसका था। अगेन एट द सेम टाइम उसके साथ साथ आप क्या करते हैं, आपको मिल जाता है वो सारा का सारा डेटा रिलेटेड विद दैट क्लस्टर, उस क्लस्टर के साथ में वो सारा डेटा मिल जाता है। और उस डेटा को आप भेज सकते हैं उस पर्सन को, जो शूज बनाने वाले सारे के सारे सेलर्स हैं जो कि अमेजन से जुड़े हुए हैं और वो चाहते हैं उनको एक्सेस कराना, तो एल्गोरिथम मदद कर देती है उस क्लस्टर ग्रुप को भी पूरी की चीजों को उनको हर प्लेटफॉर्म पर दिखाएं जहां जहां वो इंटरनेट पे एक्सेस करते हैं। तो दिस हैपेंस विद यू। तो आपने अमेजन में जाकर सुबह शूज सर्च कर लिए, तो बाय द इवनिंग आपको जितने भी आप अपने प्लेटफॉर्म यूज करते हैं उन सारे प्लेटफॉर्म से आपको शूज की ऐड दिखाई देने लग जाती है। इट मींस योर डेटा इज ऑटोमेटिकली वर्किंग विद द हेल्प ऑफ अ मशीन लर्निंग एंड यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ अ सर्टेन क्लस्टर। आप एक सर्टेन क्लस्टर का पार्ट हो गए, एक ग्रुप का पार्ट हो गए, और पूरे के पूरे ग्रुप को अब कंटिन्यूसली डेटा पोस्ट किया जा रहा है, स्ट्रीमिंग करी जा रही है उन सारे एडवर्टीजमेंट की जो कि शूज से रिलेटेड है। इनको इतना बढ़िया है। तो ये दैट इज नॉट एन एल्गोरिथम इज डूइंग, एल्गोरिथम ये खुद से अपना सारा काम करने लगती है। गॉट इट। तो मार्केटिंग, बायोलॉजी, लाइब्रेरीज, बायोलॉजी में यूज किया था डिफरेंट टाइप ऑफ, आप समझ सकते हैं कितने टाइप ऑफ टिपिकल टाइप ऑफ कंटेंट्स हैं। तो उन सबके रिस्पेक्ट में एवरीथिंग इज टू बी डन, है ना। उनके रिस्पेक्ट में बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, फीचर्स होते हैं, उन सबका कैटेगराइजेशन करना। हो सकता है कि कुछ चीजें प्लांट्स में और एनिमल में सेम हो तो उनको उठा के एक ही क्लस्टर में उठा के डालना, दैट ऑल वी डू, सारी चीजें हम करते हैं। सो बायोलॉजी हो गया, देन लाइब्रेरीज, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइब्रेरीज कैन बी क्रिएटेड, इंश्योरेंस में यूज किया था, सिटीज की प्लानिंग में किया था, अर्थक्वेक की स्टडीज में किया जा सकता है, इमेज प्रोसेसिंग में किया जाता है, जेनेटिक्स में किया जाता है, फाइनेंस में किया जाता है, कस्टमर सर्विसेज में किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है, मेडिकल डायग्नोसिस यूज करती है, फ्रॉड डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रैफिक एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोशल नेटवर्क एनालिसिस में यूज किया जाता है, साइबर सिक्योरिटी में यूज किया जाता है, क्लाइमेट एनालिसिस में यूज किया जाता है, स्पोर्ट्स एनालिसिस में यूज किया जाता है, और क्राइम एनालिसिस में यूज किया जाता है। These are few 19 but not only limited ones. So if you see all them, तो मार्केटिंग आपका पूरा का पूरा हो गया। मार्केटिंग अपने आप में बहुत बड़ा सेगमेंट है जो कि शेयर मार्केट और ट्रेड मार्केट से रिलेटेड है। बायोलॉजी का मैंने आपको एग्जांपल बताया। डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स के लिए जब आप बात करते हैं, कैटेगराइजेशन करते हैं, तो उसमें आपकी क्लस्टरिंग होती है। जैसे सपोज की अमेजन पे जाके आपने सिंपल इतना डाला, आई वांट स्पिरिचुअल, आपने सिर्फ स्पिरिचुअल वर्ड सर्च किया तो स्पिरिचुअल की कैटेगरी में क्लस्टर ही है जो आपके पास सारी बुक्स आ जाएंगी। इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर आप किस टाइप की यूनिट प्लान चाहते हैं, यूनिट प्लान चाहते हैं, कुछ और चाहते हैं, तो ऑल और कैटेगराइज वो भी आपको देता है। आप चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स को जानते हैं, तो ये आप सिर्फ प्लान को लेना चाहते हैं, एवरीथिंग एवरीथिंग इज देयर। सो सिटी प्लानिंग, किसी सिटी को प्लान करते वक्त कितने टाइप के वहाँ पे हाउसेस हैं, क्या फैक्ट्री बनेगी, कहाँ मार्केट बनेगा, कहाँ शॉप बनेगी, इतने एरिया में हम ये बनाएंगे। तो पूरी सिटी को जब हम प्लान करते हैं तो सिटी की प्लानिंग का जो मैप क्रिएट किया जाता है, कैन बी क्लस्टर्ड इनटू द डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरीज सो दैट यू कैन इजीली बैलेंस अदर थिंग्स। अर्थक्वेक की स्टडी कर सकते हैं आप, इमेज प्रोसेसिंग आप कर सकते हैं, जेनेटिक्स में इमेज प्रोसेसिंग अपने में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप देखें ना, कंप्यूटर विजन, मतलब हमारी जगह जब कंप्यूटर लेने वाला है उसको बोलते हैं कंप्यूटर विजन। यानी गूगल ने अपनी कार जो बना के, जो टेस्ला कार आपके पास में ऑटोमेटिक कार घूम रही है, वो क्या है, ये गूगल के जो लेंस है अपने आप क्या है, ये कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन का मतलब आप अपनी तरीके की आंखें, सोचने समझने वाली आंखें कंप्यूटर को जब दे देते हो, देन यू कॉल इट एज अ कंप्यूटर विजन, तभी कंप्यूटर विजन बन जाता है। अब ये जो कंप्यूटर विजन की हम बात कर रहे हैं, जिस कंप्यूटर विजन की हम बात कर रहे हैं, वो कंप्यूटर विजन
और कंप्यूटर विजन किससे आ गया था, वो इमेज प्रोसेसिंग से आता है। तो ये भी तरीका था, जैसे मैंने सही पे देखा, आप सपोज कीजिए मुझे गाड़ी चलाते वक्त किन किन चीजों की जरूरत है, गाड़ी चलाते हैं सब चीजों का है कि यहाँ पे फ्यूज है, यहाँ पे फ्यूमल्स है, तो कैटेगराइजेशन ही तो है सारा का सारा, और क्या है। जेनेटिक्स क्लस्टरिंग यूज टू ग्रुप जीन्स, जीन्स को अलग किया जा सकता है। फाइनेंस में आपको मैंने बताया था, मार्केट के बारे में आप पूरा एनालिसिस कर सकते हैं। कस्टमर सर्विसेज आप दे सकते हैं कि किस टाइप का कस्टमर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो मैंने अभी अपना रीजन का एग्जांपल बताया। मैन्युफैक्चरिंग आप उसके बेसिस पर कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी की आप बारे में बात कर सकते हैं, मेडिकल डायग्नोसिस की आप बात कर सकते हैं, जो सारी की सारी बात वहाँ पे आ सकती है। फ्रॉड डिटेक्शन पे आप बात कर सकते हैं, ट्रैफिक एनालिसिस पे आप बात करते हैं, सोशल नेटवर्क एनालिसिस की आपके अपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। So if you see here that all are the very, very important points. Clustering is used to identify the communities or group without social network. साइबर सिक्योरिटीज पे आप काम करते हैं, क्लाइमेट एनालिसिस पर आप काम करते हैं, स्पोर्ट्स एनालिसिस पर आप काम करते हैं। सिमिलरली क्राइम एनालिसिस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पोर्ट्स का एग्जांपल, अभी क्लाइमेट का आपको समझ में आ गया होगा, साइबर सिक्योरिटी की आपको थ्रेट्स के टाइप समझ में आने लगे, कितने लोग इंक्लूड करके आके आना चाहते हैं। और आजकल तो आपका जीमेल जो है वो ऑटोमेटिक डिटेक्शन करता है कि किस टाइप का मेल आया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को यूज करके, और उसका क्या आंसर होना चाहिए। तो वो भी उसने भी क्लस्टर कर रखे हैं अपने आंसर्स। ऐसे ही जब हम साइबर सिक्योरिटी के ऊपर जाते हैं तो बहुत सारे थ्रेट्स काम करते हैं जिनके लिए हमारी मशीन और डिवाइस काम करना शुरू करती है। क्लाइमेट भी बहुत अपने आप में कॉमन है कि अलग अलग टाइप की क्लाइमेट कंडीशन है कि क्या ह्यूमिडिटी रहेगी, क्या टेम्परेचर रहेगा, प्रेसिपिटेशन क्या रहेगा, विंड क्या रहेगी, एवरीथिंग यू कैन डू। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप प्लानिंग कर सकते हैं वहां की। स्पोर्ट्स में भी आप कर सकते हैं, स्पोर्ट्स का भी एनालिसिस करते हैं। सी 2000 लाइक स्पोर्ट्स में भी आप ये मान के चलिए जो गेम आप देख रहे हैं दैट इज वन साइड, लेकिन उसके साथ जो कमर्शलाइजेशन एडेड है, तो कमर्शलाइजेशन इस बात पे एडेड है कि जहां हम जिस टीम के ऊपर वर्क कर रहे हैं वो कमर्शलाइजेशन सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, और वो डिपेंड करेगा टीम परफॉर्मेंस पे। तो ये सारी एनालिसिस स्ट्रेटेजीज पे काम करते हैं डेटा एनालिस्ट, वो सारे के सारे इस पे बैठ के काम करते हैं, दे ऑल आर वर्किंग ऑन दैट, वो सब पे काम करते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट, उस पर आफ्टर दैट दे डिसाइड एंड दे गो, फिर उसके बाद में वो अपना ये डेवलप करते हैं कि आई एम गोना टू वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर टीम मेंबर, ये इसका पास्ट रिकॉर्ड था, ये फ्यूचर रिकॉर्ड था। So if that is being done always manually, so definitely there will be a probability of missing something. So that has been put into the automated system and that are working. इतने मैचेस, इतने रेड टीम से इतने लोग काम कर रहे हैं, तो when you are just putting into the data into it and it is automatically working on that, ये अपने आप उस पर काम कर रहे हैं। So crime में भी आप लोग यूज करते हैं, क्लस्टरिंग यूज टू ग्रुप द सिमिलर पैटर्न ऑफ क्राइम डेटा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, such as location, time, type, which can help you identify crime hotspots. कहाँ पर crime है पता चल जाता है। Predicting future crime trends, improving the crime prevention strategy. तो अब आपने यहाँ पर इस पूरे टॉपिक के अंदर जो आज पढ़ा वो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपके लिए वो पूरा का पूरा सेक्शन रिवाइज कर देता हूँ। आपने क्लस्टरिंग, मशीन लर्निंग पढ़ा, क्या होता है वो समझा, क्लस्टरिंग के बारे में जानने की कोशिश करी, उसके जनरल एग्जांपल्स को समझा, क्लस्टरिंग कहाँ की जाती है, आपको पता है क्लस्टरिंग आप यूज करते हैं डेली लाइफ में। हमारा ब्रेन हमेशा क्लस्टरिंग कर रहा होता है, वो हमेशा चीजों को क्लस्टर करता है, जरूरी नहीं है चीजों को जाने। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको कुछ बहुत सारे पेड़ों की पत्तियां दे दूं और बहुत सारे पत्थर दे दूं, तो आप बड़े आराम से पेड़ों की पत्तियों को अलग कर देंगे, पत्थरों को अलग कर देंगे, जबकि आप पत्थरों का नाम नहीं जानते और पेड़ों की पत्तियों का नाम नहीं जानते। बट व्हाट यू डू, आप देखते हैं कि ये सिमिलर है, इनको एक ग्रुप में डाल दो, ये डिसिमिलर है, इनको दूसरे ग्रुप में डाल दो, दैट्स इट। तो क्लस्टरिंग यू डू एट ऑल दिस। कुछ इसके साथ में टेक्निकल टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड है, वो हमने आपको यहाँ डिफाइन करके बता दी। क्लस्टरिंग क्या होती है, क्लस्टरिंग के कौन कौन से मेथड होते हैं वो हमने आपको यहाँ डिफाइन किया, उनके भी इंटरनल बीबी स्कैन कौन कौन से मेथड्स होते हैं वो भी हमने आपको यहाँ पर बता दी। थ्योरेटिकल में क्या होता है वो भी आपको समझाया, दो तरीके के होते हैं, फर्दर विल मूव ऑन एंड स्टडी इट वेल। पार्टीशनिंग मेथड हो गया, ग्रिड बेस्ड मेथड हो गया, क्लस्टरिंग एल्गोरिथम यूज करते हैं, बहुत सारे एल्गोरिथम से, पर सबसे ज्यादा यूज करने वाली के-मींस क्लस्टरिंग है। के-मींस क्लस्टरिंग में क्या कहते हैं, मीन निकाली जाती है। लेटर ऑन हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, आपके सिलेबस का पूरा पार्ट है फर्दर यूनिट्स में जब आप चाहें। तो यहाँ पर एक क्लस्टरिंग की एल्गोरिथम है, तो आप मीन्स निकालते हैं, उसके बेसिस पर डिवाइड करते जाते हैं, सिमिलरिटी मीन निकाले जाते हैं। फिर ये देखा गया है कि इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं, ये सारे के सारे एप्लीकेशंस पर। तो दिस इज व्हाट फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मुझे बताना है, क्लस्टरिंग जब की जाती है, अब हमारी क्लस्टरिंग तो हम तो समझ लेते हैं कि ये क्लोथ है और ये फ्रूट है, लेकिन एक्चुअली हम क्या देखते हैं, फ्रूट को और क्लोथ को, इन दोनों के फीचर्स को देखते हैं। यानी इन दोनों के बीच में जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी, इनके फीचर्स में जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी, उतना ही इनके क्लस्टर्स को बनाना आसान है। तो अब आप ये समझ लीजिए
कि जो हमने यहाँ पर एक जो लाइन कही थी कि क्लस्टरिंग किसके बेसिस पे की जाती है, क्लस्टरिंग डेटा पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस के ऊपर की जाती है ना। यहाँ पर हमने एक बात करी सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी। तो ये सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा वो डिस्टेंस मेजर करता है, किसी एक फीचर को पिक करता है। जैसे मैं कहूँ ये मैं एक रेड कलर का शर्ट पहनूं और एक मैं कहूँ कि एक पिंक कलर का शर्ट है, तो रेड और पिंक के बीच में वो ये दिखेगा इन दोनों चीजों के फीचर्स के बीच में डिस्टेंस कितना है। जैसे ब्लैक और रेड के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो ग्रुपिंग आसान हो गई। तो जितना ज्यादा डिफरेंस उतनी आसानी से ग्रुपिंग, और जितना कम डिफरेंस वहां रेड और पिंक के बीच में, उसको मशीन को कंफ्यूजन हो सकता है। तो हमें यह प्रिसाइज करना पड़ेगा कि इतनी थ्रेशोल्ड डिस्टेंस होगी तो आप एक ग्रुप में डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। ठीक है, ये डिस्टेंस कहलाता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। सो आई होप सो you might be okay and happy with the today's content, and that's nice and good. Let's move on for the further आगे की discussion फिर आगे की इसमें topics में करेंगे, and meanwhile if you have any sort of a query you can ask me, most welcome. Otherwise I'm closing the session here. Thank you. I'm stopping this recording.